Hello, class 9th students. Your next topic is cytoplasm. We have already studied the nucleus. Now we will study about the cytoplasm. In cytoplasm, you see in the NCERT, when we look at the temporary amounts of the onion peel as well as human chick cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. तो समझिए जो साइटोप्लाज्म है वो एक तरह का सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड फॉर्म में रहता है, चाहे वो प्लांट की सेल्स हो या एनिमल्स की सेल्स हो। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? वो मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करता है। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या हुआ? मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करना। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड कंटेंट है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, हर ऑर्गेनल्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो हर ऑर्गेनल्स का अपना एक फंक्शन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि वो एनर्जी सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ही है। Now see here prokaryotics and eukaryotics. I've already told you about the prokaryotes and eukaryotes organism. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर के ऊपर न्यूक्लियर की आउटर कवरिंग जो होती है उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। The significance of membrane can be illustrated with the example of virus. अब वायरस को देख लीजिए। वायरस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए वो उनमें कोई लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उनको अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करवाने के लिए होस्ट की ज़रूरत रहती है, ठीक है। वायरस जो बाहर है वो नॉन लिविंग है क्योंकि उसमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। उसको लिविंग होने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है और उस लिविंग में जिस होस्ट का वो यूज़ करता है उसका डीएनए आरएनए को यूज़ करता है और उसके न्यूक्लियर मटेरियल्स को यूज़ करके वो लिविंग होता है। नाउ सेल ऑर्गेनल्स। इन द सेल ऑर्गेनल्स वी विल स्टडी अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids, etc. ठीक है। First, your topic endoplasmic reticulum. In endoplasmic reticulum, you will see about the rough endoplasmic reticulum and the smooth endoplasmic reticulum. In the rough endoplasmic reticulum, it is involved in the protein synthesis because on the surface of rough endoplasmic reticulum, ribosomes are present, but on the surface of smooth endoplasmic reticulum there is no ribosomes or no any structure present, so they are smooth, and the smooth endoplasmic reticulums are clearly involved in the lipid synthesis. Now see here in your NCERT book, the endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tubes and sheets. You have also learned, or you have also you should have to write in your copy about the membrane bound organelles, which are single membrane or double membrane bound organelles. It's your homework, okay? It looks like long tubules or round or oblong bags vesicles. Endoplasmic reticulum seems like vesicles. The ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. There are two types: ER, rough endoplasmic reticulum, and smooth endoplasmic reticulum. RER look rough under a microscope because it has particle called ribosome attached to it. I've already told that on the surface of rough endoplasmic reticulum, ribosomes are present. The ribosomes which are present in all active cells are the site of protein manufacture. RER is the site of protein synthesis, okay, because ribosomes are directly present on its surface. The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on need using the ER. The SER help in the manufacture of fat molecules or lipids important for cell functions. The function of SER is lipid synthesis, okay. Lipid, what is lipid? Lipid is a fat molecule. Lipid is a fat substances
Some of these protein and lipid help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. What is membrane biogenesis? First, understand the meaning of biogenesis. The genesis means formation. Genesis कहीं भी word अगर आता है genesis तो इसका मतलब होता है formation होना. Bio मतलब जो living beings है, ठीक है. तो living beings में किसी चीज़ का formation होना, किसी membrane के बनने को बोलते हैं membrane biogenesis. Genesis कहीं भी आता है तो इसका मतलब होता है formation होना. Okay. Some other proteins and lipid function as enzyme and हार्मोन्स. कुछ प्रोटीन और लिपिड जो है एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह फंक्शन करते हैं. हार्मोन्स क्या होते हैं और एंजाइम्स क्या होते हैं, ठीक है. एंजाइम्स एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है, जिनका फंक्शन होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना. हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहा जाता है. जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है. यू कैन सी द एग्जाम्पल लाइक ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन टू द CO2H2O एंड एनर्जी. ओके, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन to the CO2H2O and energy. It is also a metabolism. Metabolism is divided into two parts, catabolism and anabolism. In catabolism, glucose is breakdown, means it involved in the breakdown of any substance, and anabolism means synthesis of any substance like CO2H2O and energy will form the glucose. Okay. जब कुछ टूटता है तो कैटाबॉलिज्म, कोई केमिकल टूट रहा है, ठीक है, कोई सब्सटेंस टूट रहा है तो कैटाबॉलिज्म, कोई सब्सटेंस बन रहा है तो एनाबॉलिज्म. ये हो गया आपका मेटाबॉलिज्म. फिर एंजाइम्स, कैटलिस्ट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एंजाइम इज़ अ बायो कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस. जो टूटने का या बनने का प्रोसेस उनको बढ़ा देता है. हार्मोन्स इज़ अ लिक्विड सब्सटेंसेस विच secrete from our glands. Okay. Although the ear varies greatly in the appearance in the different cells, it always forms a nerve system. This one function of the ear is to serve as channel for the transport of material between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. The ear also functions as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या कर सकता है? मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक सेल के या साइटोप्लाज्म के अंदर ही ट्रांसफ़र करता है, भेजता है, ठीक है. फिर ईआर और क्या कर सकता है? जो लीवर सेल्स होते हैं जिसमें वर्टिब्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसी एनिमल्स जिसमें लीवर सेल्स जो वर्टिब्रेट्स यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो. हमारी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम है. वर्टिब्रल कॉलम यू कैन से जो हमारा बैकबोन होता है, एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है. तो उसे वर्टिब्रेट्स होते हैं. SCR का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है? डिटॉक्सीफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स, ठीक है. पॉइजन्स एंड ड्रग्स को डिटॉक्सीफाइंग करना. और जो लीवर की सेल्स होती हैं इनका भी काम क्या होता है? जो डिटॉक्स सब्सटेंस है उनको सिंपल सब्सटेंस में चेंज करना. जो जितने भी ड्रग्स हैं, वाइन्स हैं, उनको अगर लिया जाता है तो लीवर को ही वो डैमेज करता है, ठीक है. Golgi apparatus. Golgi apparatus first time discovered by Golgi. Here given about the Camillo Golgi was born at Corteno near Brescia in 1843. You have to study this yourself. Now see about the Golgi apparatus. Golgi apparatus first described by the Camillo Golgi consists of a system of membrane-bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cisternae. Golgi apparatus के 3 पार्ट होते हैं: cisternae, vesicle and vacuole. Golgi apparatus have 3 parts: cisternae, vesicles and vacuoles. In your book only cisternae given. So now see the cisternae. Cisternae are parallelly arranged, ठीक है, to each others. Here the convex and the concave faces are divided, which you have studied. You will study in your higher classes. Okay. These membranes often have connections with the membrane of ear. जो गोल्गी apparatus होता है उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी कनेक्शन रहता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मटेरियल पैक्ड होता है और फिर उसे गोल्गी apparatus की हेल्प से
अंदर और बाहर मटेरियल्स को भेजे जाते हैं, ठीक है। अब ये जो मटेरियल्स पैक्ड होते हैं उन्हें वेसिकल्स कहते हैं। वेसिकल्स के बारे में भी दिया हुआ है, इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल। जो भी स्टोरेज होता है, मॉडिफिकेशन होता है और जो पैकेजिंग होता है वो कहाँ होता है, वेसिकल्स में। उसके बाद जो लाइसोसोम का सिंथेसिस होता है वो भी कहाँ होता है, गोल्गी अपैरेटस में। लाइसोसोम जो फॉर्मेशन होता है वो भी गोल्गी अपैरेटस में होता है। और गोल्गी अपैरेटस का पहला फंक्शन क्या हो गया, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करना। एक्रोसोम एक वर्ड होता है, उसका भी वो फॉर्मेशन करता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है। आई विल टोल्ड यू आफ्टर दैट व्हाट इज़ एक्रोसोम का भी फॉर्मेशन करता है और किसी भी मटेरियल को डिस्पैच करने में हेल्प करता है ईआर से, ठीक है। Now see other next organelle, lysosome. Lysosome and membrane bound sac filled with digestive enzyme. लाइसोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, ठीक है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये एंजाइम कैसे बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से ये एंजाइम फॉर्म होते हैं। लाइसोसोम को स्कैवेंजर ऑफ द सेल कहते हैं। स्कैवेंजर यू कैन सी द वल्चर, ठीक है, वो क्या है, स्कैवेंजर का काम करते हैं। तो लाइसोसोम क्या करती है, अपनी ही सेल को खाने लगती है, ठीक है, अपनी ही सेल को खा जाती है, इसलिए उसे स्कैवेंजर ऑफ द सेल कहते हैं। जब भी हमें भूख लगती है, ठीक है, जब भी हमें भूख लगती है और हम खाना नहीं खाते तो लाइसोसोम क्या करती है, हमारी सेल से ही फूड मटेरियल्स को लेने लगती है, सेल से ही न्यूट्रिशन लेने लगती है और सेल क्या होती है, मरने लगती है, ठीक है। लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं इसको। दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। जब भी वो सेल ऑर्गेनल्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, या फिर जो भी फॉरेन मटेरियल है उनको क्या करती हैं, ये डाइजेस्ट कर लेती हैं। फॉरेन मटेरियल एंटर करता है सेल में, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फूड हो गया, ठीक है, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइसोसोम, लाइसोसोम में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में, जिसलिए ईजिली ये एब्जॉर्ब किया जा सके। लाइसोसोम एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है, ठीक है, जो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन में हेल्प कर सकता है, ठीक है। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है और सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। अगर सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम फट जाएगी और अपनी ही सेल को निकल जाएगी वो, इसलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, लाइसोसोम। जबकि गोल्गी अपैरेटस क्या है, गोल्गी अपैरेटस को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। गोल्गी अपैरेटस को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं, और लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग नेम है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, here given in the first line. Mitochondria have two membrane covering. Outer membrane is porous while the inner membrane is deeply folded. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो पोरस होती है, जिसमें अंदर और बाहर, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस आ जा सकते हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड होती है। जो फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन होती है उसे क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है, जो फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है उसे क्रिस्टी कहते हैं, CRISTAE। इस फोल्डेड मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जिससे ATP का जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जो भी हमारी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है वो कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही आती है। माइटोकॉन्ड्रिया का ही फंक्शन है ATP का सिंथेसाइज करना। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, प्लास्टिड नेक्स्ट आपका ऑर्गेनल है, इसमें क्लोरोप्लास्ट कंटेन होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है और जो माइटोकॉन्ड्रिया, इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं, क्योंकि इनके पास अपना राइबोसोम होता है और अपना DNA होता है। क्योंकि इनके पास अपना DNA होता है और अपना राइबोसोम होता है, इसलिए इन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं। और किसी भी ऑर्गेनल्स के पास अपना DNA, अपना राइबोसोम नहीं होता, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यू विल सी इन द
chloroplast. Chloroplast also contain various yellow or orange पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है कि क्लोरोफिल जो होता है, लाइट पड़ रही है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो भी लाइट पड़ रही है उसे वो सनलाइट को क्लोरोफिल इजीली एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स में. ATP is known as the energy currency of the cells. The body uses energy stored in ATP for making new chemical compound and for mechanical work. For mechanical work, we will get energy. Energy comes from the mitochondria because mitochondria synthesize ATP, so it helps in the mechanical work. Mitochondria are the strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. I have already told the mitochondria and chloroplast are the semi-autonomous organelles because they have own ribosomes and own DNA, and no other organelles have own ribosomes and DNA.